نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. تو چلیے آج کی ہماری کلاس ہونے والی ہے صرف اور صرف 1 آور کے لیے، تاکہ رمضان کی ٹائمنگ ہے نا، یہ 1 گھنٹہ ہی صرف انشاءاللہ بإذن اللہ. تو چھوٹی سی مختصر سی کلاس ہے، تو اس کو دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ، تاکہ جو ہے مسٹیکس نہ ہو، اور اچھے سے جو ہے صرف اور صرف نیت کو اپنے خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کریے، کہ جو بھی ہم علم سیکھ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر سیکھ رہے ہیں، تاکہ یہ جو ہے نا ہمارا علم سیکھنا وہ عبادت ہو جائے انشاءاللہ بإذن اللہ. اوکے چلیے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، I think اس میں تھوڑی جو جیسا کہ ہم لاسٹ ٹائم دیکھے تھے کہ جب آپ کوئی بھی اسم کو دیکھیں گے تو اس میں 4 چیزیں دیکھیں گے، ہے نا؟ کون سی 4 چیزیں دیکھے تھے؟ وہ تھا ہمارا جنس اور عدد اور وسعت اور اعراب. ان 4 چیزوں کو ہم دیکھیں گے. Okay. چلو بسم اللہ. Okay. یہ جو سب سے پہلے والا جنس تھا وہ نہیں آ رہا. I don't know وہ پتہ نہیں کیا ہوا. چلیے خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی اسم کو دیکھیں گے یہ 4 چیزیں ہم اس میں ضرور دیکھیں گے. سب سے پہلا یہاں پر لکھا ہوا تھا جنس، اور آئی تھنک اس میں بہت کنفیوژن ہے لوگوں کو، اس لیے میں یہ جو ہے نا جنس کے بارے میں ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ جب تک ہمارے پاس یہ 4 کانسیپٹس کلیئر نہ ہوں تب تک جو ہے اسم پھر کچا پکا ہی رہتا ہے. اوکے، تو سب سے پہلے جنس تھا، جس میں جنس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ جنس کے معنی کیا ہے؟ جینڈر. ویری گڈ. اوکے، اس میں ہم میل اور فیمیل دیکھتے، اور عدد میں ہم دیکھتے سنگولر، ڈویل اور پلورل. وسعت میں کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے وسعت میں کیا تھا؟ وسعت ویری گڈ، ویری گڈ فاطمہ. ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ. اوکے ویری گڈ الحمدللہ. اور اعراب میں کیا تھا؟ اعراب میں نصب، جر اور رفع. ویری گڈ ساتھی الحمدللہ. یہ ہماری بیسک جو نا ٹرمینالوجی ہے، بیسک چیزیں ہیں جو ہم کوئی بھی اسم کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے. تو جنس دیکھیے عربی زبان میں 2 طرح کے ہیں. اوکے، مذکر اور مؤنث. مذکر کا میننگ کیا ہے؟ میل. مؤنث کا میننگ کیا ہے؟ فیمیل. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جیسا کہ ایک محاورہ لکھا گیا ہے، دیوار گر گیا. اگر میں اس طرح سے بولی، سوری عربک میں بولی میں اس طرح سے کہ دیوار گر گیا، ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے اردو میں دیوار گر گیا، تو آپ لوگ کیا صحیح ہے یہ سینٹنس بولیں گے؟ اگر میں اس سینٹنس کو اس طرح سے بولی کہ دیوار گر گیا اردو میں، تو آپ لوگ کو صحیح دکھ رہا ہے؟ یہ نہیں دکھ رہا. کیوں؟ کیا غلطی کری میں کہ کس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ یہ اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ دیوار گر گئی. ویری گڈ. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو دیوار کو اردو زبان میں یہ دیوار کو ہم فیمینائن کنسیڈر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے ہماری عربک زبان میں جو مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے. تو وہ کون سی ہے؟ ہم لاسٹ ٹائم بھی دیکھے تھے، لیکن آئی تھنک وہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے اور مارکس بہت کم آئے یہ والے سوال میں جو پوچھا گیا تھا. تو آپ کو اس میں پکا ہونا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز جو مؤنث ہم کہیں گے وہ ہے موٹے. یہ دیکھیے اس کی بحث بہت بڑی ہے کہ مؤنث کون سے چیزیں ہیں. یہ آپ کے بک میں الگ چیپٹر ہے،
لیکن میں ایک موٹے طور پر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز کو مؤنث مذکر تو آپ آسانی سے پہچان لے سکتے جب مذکر وہ ہو جاتا اوکے جو بھی مؤنث ہے اس کے علاوہ باقی کی چیزیں تو سب مذکر ہے آسانی سے پہچان سکتے لیکن مؤنث کے لیے تھوڑا آپ کو محنت کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے حقیقی مؤنث. اوکے مؤنث 3 کیٹیگریز میں ہم موٹے موٹے طور پر 3 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کریں. ایک ہے حقیقی مؤنث، دوسرا ہے علامتی مؤنث، تیسرا ہے سماعی مؤنث. حقیقی مؤنث کیا ہے؟ جو اوریجنلی جو ہے نا بایولوجیکلی جس کا اپوزٹ جینڈر موجود ہو. فار ایگزامپل میں اگر بولی آپ کو ماں، اردو میں بولی ماں، تو آپ بولتے کہ ماں بولتے کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک فیمیل فگر آپ کے دماغ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ مدر رہتا، اس کے اپوزٹ فادر رہتا. اوکے اگر میں آپ کو بولی بہن، بہن اگر آپ کو میں بولی اردو میں تو آپ نہیں یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ بہن کا مطلب مذکر ہے. آپ بولیں گے بہن. اوکے بہن مطلب مؤنث کسی عورت کی بات کر رہے، لیڈی کی بات کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہو گئی؟ مؤنث ہو گئی. حقیقی جس کے اپوزٹ بایولوجیکل جینڈر موجود ہو. اوکے جو گرامر کے حساب سے نہیں، جو بایولوجیکلی میل اور فیمیل ہو. ٹھیک ہے، وہ ہو گئی حقیقی مؤنث. دوسری کیٹیگری کیا ہے ہماری؟ علامتی مؤنث. علامتی علامت جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے اس سے نام سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ علامت ہے وہاں پر، سائن ہے نا مؤنث ہونے کی. تو وہ ہو گیا آپ کا علامتی مؤنث، کوئی سائن سے آپ پہچانیں گے. اوکے تیسرا ہے ہمارا سماعی مؤنث. جیسا کہ ہم یہ بولے کہ دیوار گر گیا، نہیں ہوتا دیوار گر گئی آتا اردو میں. کیسا ہم آپ کو معلوم ہوا؟ وہ سنتے سنتے معلوم ہوا. ہم اس کو مطلب جیسا جب سے زبان بنی ہمارے اردو میں، جو ہمارے فور فادرس تھے ان لوگ اس طرح سے اس کو بولنا چالو کرے تو وہ جو ہے اس طرح سے ہو گئی زبان میں. وہ یعنی کہ اردو میں دیوار گر گئی بولتے، دیوار گر گیا نہیں بولتے. تو اوکے تو اسی طرح سے آپ کو جو ہے نا بہت ساری سماعی چیزیں ہیں. عربی میں لوگ ہم بولے کہ یہ مؤنث ہے تو ہم اس کو مؤنث کنسیڈر کر دیتے ہیں. اوکے چلیے اب ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے یہ کون سے ہیں. اوکے سب سے فرسٹ حقیقی مؤنث میں کیا آتے ہیں جو آپ کے جو ہے حقیقی طور پر موجود ہے. یہ والا تو نہیں آنا چاہیے، آپ کو یہ رانگ لکھا ہوا ہے. یہ والا تو نہیں ہے. بنتن، بنتن یعنی کہ سسٹر، اس کے اپوزٹ موجود ہے نا سسٹر کا. بنتن یعنی کہ لڑکی، سوری لڑکی. اس کے اپوزٹ موجود ہے ولدن، ہے نا میل بچہ، بچی اور بچہ اس طرح سے ہوتا. امن، امن کا مطلب کیا ہے؟ مدر. مدر کے اپوزٹ فادر ہے. ابن ہم بولتے نا فادر اردو میں عربک میں اس طرح سے ہے. اختن کا مطلب ہے سسٹر. قطن کا مطلب ہے کیٹ. اوکے بلی بلا ہوتا اس طرح سے. ڈاگ اور میل ڈاگ ہوتا، اور اس طرح سے ٹائگر ٹائگریس ایسا ہوتی نا. جو بھی حقیقی طور پر بایولوجیکلی جو مؤنث کے اپوزٹ مذکر موجود ہے اس کو ہم حقیقی مؤنث میں کنسیڈر کریں گے. اوکے یہ کلیئر ہو گیا؟ یس اور نو گرلس؟ یہ فرسٹ پارٹ سمجھ میں آ گیا حقیقی مؤنث؟ الحمدللہ. اوکے چلیے اب ہمارا دوسرا ہم پارٹ دیکھتے ہیں، وہ ہے علامتی. یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اگر یہ علامت کسی اسم کے آخر میں موجود ہو تو وہ مؤنث کہلائے گا. کون سی علامت ہے وہ علامتیں 3 ہے. ایک ہے تا مربوطہ، ایک ہے الف اور حمزہ پہ پیش. الف اور حمزہ پہ پیش. پیش کا مطلب کیا ہے؟ ضمہ. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں الف حمزہ پہ ضمہ پیش، ایک سنگل پیش بول رہا ہوں، 2 پیش نہیں بول رہا ہوں. اوکے الف اور حمزہ پہ پیش، تا مربوطہ تو آپ لوگ معلوم ہے، اور یا کے اوپر الف صغیرہ. اوکے اس کو بولتے ہیں الف مکسورہ. آپ لوگ کے پاس اگر بک ہے تو آپ لوگ یہ چیپٹر آئی تھنک پیج نمبر 387 پہ کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جو ہم لوگ سب سے پہلے پڑھ لیے، اس میں اس طرح سے نہیں دیا گیا لیکن میں جو ہے نا اس کو آپ لوگ کو آسانی کے طور پر ایک ڈویژن یاد ہے جانا، اسی لیے میں جو ہے نا آپ کو سمجھا رہی ہوں اس طرح سے. ٹھیک ہے تو الحمدللہ. تو یہ ہو گیا ہمارے 3 سائنس، 3 علامت. کون سی علامت ہے؟ ایک تا مربوطہ، اس کو تو تا مربوطہ بولتے سب کو معلوم ہے. تا مربوطہ
ठीक है। अब ये क्या है, अलिफ और हमजा के ऊपर पेश। ओके, अलिफ और हमजा के ऊपर दम्मा रहना, उसको क्या बोलते हैं, अलिफ ममदूदा बोलते हैं, ममदूदा। ठीक है। और ये क्या है, या के ऊपर खड़ा जबर बोलते हैं उसको उर्दू में, और हमारे पास अरबिक में बोलते हैं कि अलिफ सगीरा अगर मौजूद हो तो इसको बोलेंगे अलिफ मकसूरा। ठीक है। ये तीन अलामतें हैं जो भी किसी इसम के एंड पे आखिर में आ रही, किस्म के आखिर में आ रही, तो आप वो इसम को फेमिनाइन कंसिडर करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल तामरबूता के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, जैसा कि मैं अगर बोली सय्यारतुन, कॉमनली जो अपन इस्तेमाल करते रहते देखते रहते, सय्यारतुन कार, कार को बोलते हैं, तामरबूता मौजूद है तो वो हो गया। हदीक़तुन गार्डन, मरबूता मौजूद है तो वो फेमिनाइन हो गया। ओके, इस तरह से ये एक साइन है, ये एक अलामत है मुअन्नस होने की। वो ये ग्रामर के हिसाब से अलामत है, ये ओरिजिनली ना क्या क्या कार फेमिनाइन है, नहीं है फेमिनाइन कार ओरिजिनली, बायोलॉजिकली फेमिनाइन, उसके अपोजिट जेंडर तो मैं मौजूद नहीं रहता मुदक्कर, लेकिन इसको हम अलामत के तौर पे जो है ता मरबूता आई तो इसको हम मुअन्नस बोल दी, ये ता मरबूता आई तो इसको हम मुअन्नस बोल दी। ठीक है। हदीकतुन उस तरह से है। ठीक है। हदीकतुन ता मरबूता आई तो हम इसको भी मुअन्नस बोल दिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन हमारी ता मरबूता। जब भी आप कुरान में कोई भी इसम देख रहे तो सबसे पहले उसकी अलामत को गौर करिए। ओके, अगर ता मरबूता के ऊपर फतहा हो तो चलेगा, ता मरबूता के ऊपर फतहा हो, कसरा हो, दम्मा हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो भी ये पूरे फेमिनाइन होते हैं। लेकिन मैं खास तौर पे यहाँ पर बोली अलिफ और हमजा के ऊपर दम्मा वाली साइन के लिए बोलेंगे, पर्टिकुलरली फॉर दिस वन। इसको रेड से कर देती हूँ, ये रेड से सिर्फ इस वास्ते, इसी के ऊपर है सिर्फ दम्मा रहना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तामर बुता का साइन समझ में आ गया, तामर बुता। ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम सेकेंड साइन पे आते हैं हमारी, जो ये है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा का क्या है, अलिफ रहना कोई भी किस्म के एंडिंग पे, और उसके ऊपर उसके आखिर में उसके बाद हमजा रहना, उसके ऊपर दम्मा रहना, सिंगल पेश रहना। ओके, तो उसको हम फेमिनाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं, ये सारे पूरे कलर्स जो कि हम चैप्टर 1 में करे थे। ओके, अखदरू, इस तरह से हम पढ़े थे ना अफ़आलू के पैटर्न पे, वो सारे जो है मुज़क्कर फॉर्म ऑफ कलर्स थे। अगर आप उसके एंड पे अलिफ और हमजा देखे और दम्मा देखे तो वो बन जाता है क़दराउ। ओके, मैं इसको इरेज करके लिखती हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे अलिफ ममदूदा के बारे में, और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कर दी, ये कॉमन वर्ड सहराउ। ओके, सहरा, सहरा सबको मालूम है ना, सहरा किसको बोलते हैं, सहरा किसको बोलते हैं, डेजर्ट को बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए पहले, मैं फिर इसका इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगी। सहराऊ का मतलब क्या है, ये सहरा है। ओके, डेजर्ट हुआ। अब यहाँ पर आखिर में हमारे पास क्या आ रही, अलिफ और हमजा के ऊपर दम्मा है। ओके, ये कम्प्लीटली फुलफिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फेमिनाइन, हम उसको बोल दिए फेमिनाइन। अब इसका क्या है, ये एक दम्मा देख के आप पहचाने कि ये किस तरह का इसम है। किस तरह का इसम है, कोई बोल सकता है मुझे ये सहरा और किस तरह का इसम है, बोलिए। फेमिनाइन तो है, हम बोल दिए ये। ओके, कम व्हेन इट टर्म्स ऑफ अलामती है, वेरी गुड, मुअन्नस है, अलामती है, ये हम देख के उसको बोल दिए। लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ डिपेंडिंग अपॉन चेंजेबल, उसके जो आखिरी एंड हरका को देख के बोलिए, ये दम्मा को देख के बोलिए कि क्या है ये। किसी को याद आ रहा, जब हम चैप्टर 1 में पढ़े थे तनवीन हटी तो रफा है। ओके, हरत रफा है, तो इस पर तनवीन क्यों नहीं है, हम तो बोले थे कि कोई भी इसम के ऊपर तो तनवीन होनी चाहिए, लेकिन सहरा उ आया है, क्यों तनवीन नहीं आई। चैप्टर 1 में हम पढ़े थे, एनीवन गर्ल्स,
वेरी गुड सादिया, अल्लाहुम्मा बारिक, गैर मुनसरिफ है ये। वेरी गुड। तनवीन क्यों नहीं आई मैं पूछी तो द आंसर इज इट इज गैर मुनसरिफ। अल्लाहुम्मा बारिक सादिया, वेरी गुड। क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है इसीलिए। गैर मुनसरिफ का हम क्या पढ़े थे कैटेगरी में, क्या पढ़े थे कि गैर मुनसरिफ अस्मा विल नॉट टेक तनवीन नहीं लेते वो, और वो कसरा भी नहीं लेते। ओके। अब ये सवाल किसी ने पूछा कि अगर उस पे फतहा और दम्मा आए, कसरा आए, तो हम तब क्या करेंगे, इसीलिए मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा। ओके। लेकिन आपको क्या समझना है, खाली सिर्फ अलिफ और हमजा के ऊपर आप दम्मा देखिए, इस तरह का पैटर्न आप देखिए, तो वो जो है फेमिनाइन होता। अब इसके ऊपर क्योंकि ये सहरा गैर मुनसरिफ इसम है, तो ये तनवीन नहीं देखते आप इस पे, और ना कसरा देखते। ओके। तो मतलब इस पे आप क्या देखेंगे, खाली सिर्फ दम्मा और फतहा। और अगर ये देखें आप तो मतलब ये क्या हो गया, मोनस हो गया। ओके। अभी इसमें कसरा भी लगती है कंडीशन में, वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे आप कब लगती कसरा, कब होता वो इंशाल्लाह। लेकिन आज ही मैं सब चीज समझाने बैठा तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा जॉब टॉपिक क्या है, हमको क्या करना है हमारा, कि हमारा अलिफ और हमजा हो और उसके ऊपर दम्मा आए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इसम मोनस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसपे एक अलामत है। वो क्या अलामत है, अलिफ ममदूदा की अलामत है। ठीक है। चलिए, तो ये आपका सेकंड हो गया अलामती मोनस का टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड कैटेगरी जो है, उसके बाद तीसरी कैटेगरी है जो है हमारी समाई मोनस। ओके। मोनस समाई ऐसे अस्मा है जिन्हें अरब मोनस पुकारते हैं। ओके। उसकी कोई वजूहात नहीं है, उसकी कोई भी वजह नहीं है कि इसको क्यों मोनस बोल रहे हैं। बस उसको अरबी हम मोनस बोले तो हम भी मोनस यकीन करिए। उसमें कौन से चीजें हैं, मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, ओके, आग के नाम, हवा के नाम। अगर मैं बोली मुल्कों के नाम जैसा कि मक्का है, ओके, और शहरों के नाम, ओके, जैसा कि हम हैं जद्दा लिए फॉर एग्जांपल, ये सब क्या होते हैं, मुअन्नस कंसिडर किया जाते हैं। उसके एंड में तामर बोता दिखे आपको या ना दिखे, बट स्टिल दे आर फेमिनाइन। तो हम क्या क्या बोले समाई मुअन्नस में, सबसे कैसा समझे इसको, जैसा हम अरबी में अगर उर्दू में बोले दीवार गिरा तो रॉन्ग हो जाता, दीवार गिरी, क्योंकि दीवार को फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है अरबी उर्दू में। इसी तरह से अरबी जुबान में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समाई मुअन्नस है, उन लोगों को खाली सुन सुन के अरबियां बोले तो हम उसको यकीन कर लिया और उसको सुन लिए। उसके मोटे मोटे चीजें कौन से हैं, सबसे पहले क्या बोले हम, शहरों मुल्कों के नाम, पूरे कंट्रीज के नेम। ओके। अल हिंदू जैसे कि इंडिया है, मोनस कंसिडर किया जाता। ओके। मोटे तौर पर आप क्या याद रख लीजिए, कंट्रीज के नेम। सेकंड क्या बोले हम, शहरों के नाम, आप पूरे सिटीज के नेम। ओके। थर्ड चीज हम क्या बोले, आग के पूरे नामा, आग। अब आग के पूरे नामा मतलब क्या है, जहन्नुम के पूरे नामा। कुरान में जहन्नुम के जो है अलग अलग नामों से जो है नाम बोला गया जहन्नुम को, जो आग है ना उसकी इंटेंसिटी के लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अजना मिनन नार। तो इस तरह से आग के पूरे नामों को मोनस कंसिडर किया जाता। और उसके बाद क्या है, हवा के नाम। ओके। हवा, हवा के भी अलग अलग नाम हैं, तो वो भी मोनस कंसिडर किया जाते हैं। ये पूरे कौन से मोनस है, समाई मोनस है। अब एग्जाम्पल के वास्ते जो है आप ये देखिए, समाई मोनस में तो अब यहाँ पर सबसे पहली पिक्चर किसकी है गर्ल्स, ये जो ब्लू दिख रही, क्या इसको अरबी में क्या बोलते हैं, स्काई को। समाउन, वेरी गुड। तो समाउन, आसमान को क्या बोलते हैं, समाउन। तो ये अरबी में मोनस कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट पिक्चर है सूरज सन की, शमसुन। शमसुन को भी अरबिक में मोनस कंसिडर किया जाता। ओके। नेक्स्ट पिक्चर है हवा, पूरे हवाओं के नाम, विंड्स, रिहिन, रिहुन, ये भी मोनस कंसिडर किए जाते हैं अरबिक में। नारुन, अगर मैं बोली नारुन, जहन्नमुन, ओके, सईरुन, ये सब पूरे क्या है आपके फेमिनाइन कंसिडर किए जाते हैं अरबिक में। ओके। तो मोटे तौर पर इसको इस तरह से याद रखिए कि जो भी
अरबी आप बोल लिए, हम सुन लिए, समाई हो गया। समाई मतलब सुनी सुनाई मुअन्नस। ओके, तो ये वाले है जो हमारे समाई मुअन्नस है। ओके, शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, आग के पूरे नाम, हवाओं के नाम, और इसके अलावा ये आसमान, जमीन, अर्द को भी मुअन्नस कंसिडर किया जाता है अरबिक में। सूरज, इतना बड़ा सूरज है ना, हम बोलते इतना बड़ा सूरज है, लेकिन ये उसको फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लगाते हैं हमारा टेस्ट, जिसमें मुश्किल आई सबको। आई डोंट नो इतने मार्क्स कम क्यों हो गए। खैर, फिर भी इंशाल्लाह चैट बॉक्स में रेडी रहिए ताकि वी कैन डिस्कस फास्टर फास्टर इंशाल्लाह। ओके, तो सबसे पहला सवाल था निसाउन। निसाउन क्या है? अब जमा सालिम है और जमा मुकस्सर पहचाना था आपको। जमा सालिम का मतलब क्या है? जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता। जमा मुकस्सर का क्या है डेफिनेशन? जो ब्रोकन प्लूरल है, मुकस्सर टूटा हुआ प्लूरल है। ओके, तो अब आप जो है देख के बोलिए। निसाउन, इमराअतुन सिंगुलर, निसाउन प्लूरल, तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ प्लूरल हुआ? ब्रोकन प्लूरल। ओके, आप लोग बी भी लिख दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के वास्ते। काफिरून, ऊन की साउंड आ रही, तो मतलब क्या है? ये ब्रोकन है या साउंड है? एस, वेरी गुड, साउंड प्लूरल। मुस्लिमातुन, आतुन की साउंड आ रही, आतुन साउंड प्लूरल, वेरी गुड। हामिदातुन, हामिदातुन साउंड प्लूरल, वेरी गुड। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना साउंड प्लूरल, वेरी गुड। अब कल्बुन से कुलूबुन, कुलूबुन ब्रोकन प्लूरल, वेरी गुड। अकलामुन, अकलामुन, वेरी गुड। अब यहाँ पर नोट करिए, कल्बुन अकलामुन था, लेकिन मसाजिदु है, मसाजिदु। ये मसाजिदु क्यों है? जब भी आपको कोई भी इसम पे जो है, मसाजिदु ब्रोकन प्लूरल है करेक्ट, लेकिन मसाजिदु क्यों है? मसाजिदुन क्यों नहीं है? गैर मुनसरिफ है वो, वेरी गुड। ओके, जब भी आपको कोई भी इसम पे तनवीन ना दिखे तो आप सोचना, या तो वो गैर मुनसरिफ या तो मबनी हो सकता। दम्मा है तो गैर मुनसरिफ, ये अलामत है। अगर मबनी होता तो मूसा, ईसा इस तरह से आता। दुनिया, आसा, ये अलिफ से आता था। ओके, खैर वो भी चैप्टर है इंशाअल्लाह, लेकिन मैं आप लोगों को बीच में थोड़ा 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 सा बोलते रहती हूँ ताकि आप लोग को एक जरा नए, जब हम पढ़ने गए तो नए नए टर्म्स नहीं दिखना, गैर मुनसरिफ क्या है बल्कि बड़ा चीज नहीं दिखना, आसान दिखना, इसीलिए मैं बीच बीच में बोलते रहती हूँ। ओके, कुफ्फारुन, ये कौन सा प्लूरल है? ब्रोकन या सालिम? जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? कुफ्फारुन ब्रोकन प्लूरल है। ओके, वेरी गुड। हामिदूना, हामिदूना, ऊना की साउंड आई। ये लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों का मतलब क्या है? ये सलीम, वेरी गुड, साउंड प्लूरल है। अब आपको जो है ना क्या पहचाना था? मुदक्कर और मुअन्नस पहचानना था। अब यहाँ पर देखिए, वलियन, आपको क्या कोई साइन दिख रही? सबसे पहले आप अरबी, जब भी आप कुरान में भी देखेंगे तो सबसे पहले अलामती मुअन्नस देखेंगे, अलामत पहले देखेंगे, उसके ऊपर कोई अलामत है तो नहीं है। तो क्या ये वलियन हकीकी मुअन्नस में आता? नहीं। क्या समाई मुअन्नस में आता? नहीं। तो क्या हुआ ये? मतलब क्या हुआ ये? मतलब ये मुज़क्कर हुआ। ओके, वलियन मुज़क्कर है, नसीरन मुज़क्कर है, ख़ाशिअतुन, अब तो ये तो बहुत आसानी से दिख रहा। ओके, ख़ाशिअतुन क्या है? फेमिनाइन है, वेरी गुड, मुअन्नस है। वुजूहुन, वुजूहुन क्या है? चेहरा, चेहरा भी क्या है? मुज़क्कर है। ओके, आमिलतुन, आमिलतुन मतलब, अच्छा यहाँ पर बोझ उठाने वाली नहीं है, लेकिन अमल करने वाली आता है। यहाँ पे बोझ उठाने वाले के वास्ते हामिलतुन आता, हामिला बोलते ना, हामिलतुन बोझ उठाने वाली, लेकिन ये आमिलतुन है, यहाँ पर उर्दू में गलत दिया गया है। ओके, आमिलतुन मतलब अमल करने वाली, तो ये मुअन्नस कंसिडर किया जाता है क्योंकि ता मरबूता है उसके एंड में, मुअन्नस है ये। ठीक है, नासिबतुन मुअन्नस है। ओके, नारन, अब ये देखिए नारन आया, ये क्या है गर्ल्स? नारन फेमिनाइन है। क्यों फेमिनाइन है? क्योंकि हम अभी देखे, क्योंकि वो उसको मोनस कंसिडर किया जाता, समाई मोनस है।
ओके। आइनुन जो है यहाँ पर चश्मा, उसका मीनिंग लिखा हुआ है साथ में। चश्मा का मतलब क्या है? स्प्रिंग। आइनुन के दो मीनिंग है, ये सेम आइनुन अगर आपको दिखे तो दो मीनिंग है, एक है चश्मा, स्प्रिंग, वाटर स्प्रिंग मतलब, और दूसरा है योर आई। ओके। अगर मैं आपसे सवाल करी कि आई जो है एक है या दो है, तो कितने बोलेंगे? अपने जिस्म में कितने आइस रहते हैं? कितने आई रहते हैं? दो रहते हैं ना। तो एनीथिंग, बॉडी पार्ट्स विच आर इन पेयर, जैसा कि आंख हो गए, दो पैर हो गए, दो हाथ हो गए। ओके, इस तरह से जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स जो पेयर में है उसको मोनस कंसिडर करते हैं। ओके, बॉडी पार्ट्स इन पेयर, ये भी समाई मोनस में आते हैं। ओके, बॉडी पार्ट्स इन पेयर, जो दो है, दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, इस तरह से ये पूरे किस में आते? समाई मोनस में कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या था? आइनिन, चश्मा, स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग मेल है। अगर यहाँ पर चश्मे के बजाय आंख लिखी हुई होती तो आप उसको डालना चाहिए था वहां पर मुअन्नस करके, लेकिन ये स्प्रिंग चश्मा है तो ये मुदक्कर है। ये बात समझ में आई गर्ल्स जो मैं अभी समझाई? ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब नेक्स्ट हामियतुन। ओके, हामियतुन। ओके इंशाल्लाह कोई बात नहीं, फेमिनाइन है। ओके, चश आनियतुन। आनियतुन क्या है? आनियतुन आनियतुन क्या है? ता मरबूता है तो फेमिनाइन है। ठीक है, अब एराब मुंतखब करिए, एराब के हिसाब से बोलिए। ये तो आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग बहुत परफेक्ट हो गए होंगे इंशाल्लाह इसमें। सबसे फर्स्ट इज असैफी। सैफी, फा के नीचे कसरा है तो क्या है? रफा, नसब या जर, जर में आता। वेरी गुड। अलबैती, ता के नीचे कसरा है तो जर में आता। खौफिन, सुभान अल्लाह, जर में आता। ओके। अल यतीमा, मीम पर फतहा है तो दैट इज मीन्स इट इज मंसूब, नसब आता। कौसरा, इट इज मंसूब, नसब में आता। अब तरु, अब तरु ये भी क्या हुआ? ये रॉ के ऊपर ज़म्मा है तो ये रफा में आता है। ओके। हा आबिदुन, ये भी रफा में आता है। हालत रफा या मरफू दो भी बोल सकते हैं आप। ओके, वेरी गुड। अल फतहु, हा के ऊपर ज़म्मा है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज हालत रफा में है या मरफू है। अन्नास, सीन के ऊपर फतह है तो यानी कि ये क्या है? ये मंसूब है। ओके। अफवाजन, जीम के ऊपर फतहतैन है तो ये मंसूब है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अन्नास, अल अफवाजन दोनों भी मंसूब है या हालत नसब में है। अब यहाँ पर और एक सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी थिंग्स वी नीड टू लर्न टू यूज नाउन। किस कौन से हमें चीज मालूम होना चाहिए? सबसे पहले जिन्स। जिन्स का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जिन्स? आंसर इसका ये सही है। जिन्स का मीनिंग है जेंडर देखना, अगर आप जेंडर देख रहे तो। अदद का मीनिंग क्या है? आप अगर देख रहे सिंगुलर, ड्वेल और प्लूरल देख रहे तो। ओके, वो साथ का मीनिंग क्या है? अगर आप देख रहे कि वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, इस तरह से। एराब अगर देख रहे हैं आप तो मतलब वो उसकी क्या एंडिंग, केस एंडिंग क्या है। ओके, यानी कि आप देख रहे हैं फतहा, दम्मा और कसरा उसके एंड पे क्या लगा हुआ है? हालत रफा, जर या नसब। ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं ये चार चीजें, तो इसम के वास्ते ये चार चीजें जरूरी है। ओके, हकीकी, समाई और अलामती मोनस को सेलेक्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ? उख्तुन, उख्तुन, ये उख्तुन बोलते कि बहन। ओके, बहन दिमाग में आ रहा, बहन क्या होता? बहन के अपोजिट भाई मौजूद रहता। तो क्या है वो? अलामती मोनस है या समाई मोनस है या हकीकी मोनस है? वो हकीकी मोनस है। ओके, क्योंकि वो मेल और फीमेल जेंडर मौजूद है बायोलॉजिकली, वो जो है आपका फीमेल है। ओके, तो वो हो गया आपका हकीकी मोनस। अब साअतुन, वॉच। अब वॉच की एंड पे ता मरबूता है तो इससे आप क्या पहचाने कि ये कौन सा मोनस है गर्ल्स? ता मरबूता है साइन उसकी, तो क्या है ये? कौन सा मोनस है? अलामती मोनस है। क्यों? क्योंकि इसके पास अलामत है ता मरबूता होने की। ओके, नेक्स्ट क़ियामतुन। क़ियामतुन ता मरबूता है आई,
ओके, तो ये भी हो गया आपका अलामती मोनस। जन्नतुन, ये भी हो गया आपका अलामती मोनस। बिन्तुन, डॉटर। अब ये क्या है बिन्तुन, ये क्या है, अब इसको बोलिए बिन्तुन, ये क्या है? बिन्तुन यानी कि डॉटर। ओके, तो मतलब ये हुआ आपका हकीकी मोनस। ठीक है। दारुन, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, दारुन का मतलब है घर, ओके, हाउस, जो कि फेमिनाइन है। ठीक है, फेमिनाइन फॉर्म ऑफ घर है ये। अगर आपको जहाँ पर मुज़क्कर यूज करना है तो आप बैतुन का इस्तेमाल करेंगे। बैतुन भी घर है और दारुन भी घर है, लेकिन दारुन इज फॉर फीमेल, बैतुन इज फॉर मेल्स। ओके, यानी कि मेल फॉर्म ऑफ, जब आपको करना है घर का इस्तेमाल तो आप बैतुन का करेंगे, दारुन फेमिनाइन का करेंगे। ओके, अब दारुन क्या है, क्या इसमें अलामत है? कोई नहीं है। हकीकी है? कोई नहीं है। मतलब क्या है? ये समाई मोनस है। ओके, तो सय्यारतुन, ता मरबूता है उसके एंड पे, तो ये क्या हुई? सय्यारतुन अलामती मुअन्नस हुई। ओके, शम्सुन, शम्सुन का मीनिंग क्या है? सूरज। सूरज क्या है? ओके, इसके एंड पे कोई अलामत है? नहीं है। क्या हकीकी जेंडर मौजूद रहता है? नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? ये समाई मुअन्नस है शम्सुन। ओके, शम्सुन समाई मुअन्नस है। अर्दुन, ये भी समाई मुअन्नस हुआ। ओके, जमीन। जहन्नमु, ओके, जहन्नमु क्या है? ये भी समाई मुअन्नस हुआ। ओके गर्ल्स, तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से आप जो है ना देखना। मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करिए, क्या है मुज़क्कर और क्या है मुअन्नस, और कौन है। उम्मुन क्या है? मुअन्नस है। ओके, माँ, मदर। मस्जिदुन, ओके, मस्जिदुन है ये। मस्जिदुन क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है। किताबुन क्या है? मुज़क्कर है। जिदारुन क्या है? मुज़क्कर है। अब यहाँ पर आया आइनुन का मीनिंग आई, आँख। आँख क्या बोले? एनीथिंग बॉडी पार्ट्स इन पैर, जो भी आपके आँख है, दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, ये जो है फेमिनाइन कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये पैर में है बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स सिंगुलर है, चेहरा जैसा कि वजहुन आया, तो उसको आप नहीं बोलना कि वो मोनस है। जो पैर में है वो ही मोनस है। तो यहाँ पर आइनुन, आई मोनस है। ओके, मेरा लिसानुन, टांग। टांग जबान कितनी रहती है? एक ही रहती, तो वो मुज़क्कर है। ठीक है। मिरवाहतुन, मिरवाहतुन यानी कि फैन, हवा, पंखा। तो ता मरबूता उसके एंड में है, तो मतलब इससे हम बोले ये समाई मोनस है। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ मोनस मुज़क्कर पहचानना है, तो मोनस है ये। मिफ्ताहुन, चाबी। तो ये क्या हुआ? मुज़क्कर हुआ। ठीक है। बाबुन, डोर, ये भी मुज़क्कर हुआ। कुर्रासतुन, कुर्रासतुन यानी कि नोटबुक जो रहती है ना, कॉपी, इसको बोलते हैं। तो ये भी मुअन्नस हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, फिर से मुअन्नस और मुज़क्कर की पहचान करिए। अब ज़ैनबु है। ज़ैनबु क्या है? मुअन्नस है, फेमिनाइन नेम। उसामतु, उसामतु क्या है गर्ल्स? उसामतु के एंड पे ता मरबूता है, इसको, इससे ये नहीं बोल देना कि ये फेमिनाइन है। उसामतु मस्क्यूलाइन है। उसामतु क्योंकि वो नाम है, उसामा, उसामा बोलते ना हम, उसामा। उसामा बिन लादेन, ये तो फेमस नाम है, सबको मालूम है, उसामा बिन लादेन। तो उसामा, ओके, ता मरबूता ऐसा होता, थोड़े इसम जो एंड होते ता मरबूता से, लेकिन वो नाम रहते फेमिना आदमियों के, जैसे कि हमजा तू है, हमजा, हमजा अपन बोलते हैं, लेकिन क्या उसको हम बोल देंगे कि वो मुअन्नस है? नहीं। ओके, एक्सेप्शन, हर किसी चीज में एक्सेप्शन रहती है, तो ये भी वो एक तरह का एक्सेप्शन है। उसामतु, उसामा मुज़क्कर नाम है, मुअन्नस नहीं होता, तो इट इज मुज़क्कर। ज़ैनबु मुअन्नस है, उसामतु मुज़क्कर है। साअतु, साअतु यानी कि वॉच। ओके, एंड में ता मरबूता है, तो ये फेमिनाइन हुआ। रासुन, सर। कितने सर होते हैं अपने बॉडी में? एक ही सर होता है ना, तो ये क्या हुआ? मुज़क्कर हुआ। कमरुन, चांद। चांद को क्या है? मुअन्नस बोलते हैं, मुज़क्कर बोलते हैं? मुज़क्कर बोलते हैं। शम्सुन क्या है? सूरज। सूरज को क्या बोलते हैं? मुअन्नस बोलते हैं। ओके, अर्दुन क्या है? जमीन। जमीन को भी मुअन्नस कंसिडर किया जाता। समाउन, आसमान को भी मुअन्नस कंसिडर किया जाता। बैतुन, घर। ये क्या है? मुज़क्कर है। अगर यहाँ पर दारुन होता तो वो मुअन्नस होता। बैतुन, घर, मुज़क्कर। दारुन भी घर, मुअन्नस फॉर्म ऑफ घर।
ओके, रफा नसब जर का देखिए क्या करना है यहाँ पर आपको, ये कौन सी हालत में है आपको पहचानना है डिपेंडिंग अपॉन द केस एंडिंग। अभी यहाँ पर जो है सिंगल हरका नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल्स डुअल के हैं, तो आपको बी केयरफुल, आपको याद रहना चाहिए सेकेंड चैप्टर। ओके, आने की साउंड यानी कि क्या हुआ, ये रफा हुआ। आनी आईनी आईनी, आईनी की साउंड अगर आई तो वो हो सकता है जर हो या नसब हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे खालिदैन, ये क्या है, आनी की साउंड आई तो ये क्या है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखिए आर और जे, इस तरह से आसानी से। तो खालिदानी, खालिदानी आने अरब, तो मतलब ये क्या हुआ, रफा। हाफिज़ानी, आनी अरब, फिर से ये भी हो गया रफा। रसूलैनी, आईनी की साउंड आ रही तो ये क्या हो गया, या तो ये नसब हो सकता है या तो ये जर हो सकता है। ओके, तो नसब या जर। बैतैनी, ये भी नसब या जर। ठीक है, बिनतानी, आनी की साउंड आ रही, ये क्या है गर्ल्स, आनी आ रहा, मतलब इट इज रफा, हालत रफा में है। मस्जिदानी, ये क्या है, ये भी हालत रफा में है। क़िबलतैनी, ओके, दो क़िबले। सॉरी, तो क़िबलतैनी यानी कि दो क़िबले, तो आईनी की साउंड आई तो ये नसब या जर में से हो सकता है। ज़ौजैनी, दो बीवियां। ओके, ज़ौजुन सिंगुलर, ज़ौजतैनी दो बीवी, ज़ौजतुन है वो उसका सिंगुलर फॉर्म ता मरबूता के साथ, तो ज़ौजतैनी, तो ये क्या हुआ, दो बीवियां यानी कि आईनी की साउंड आ रही तो इससे आप बोले ये नसब या जर हो सकता। ओके, ये रुजुलानी नहीं है, दो रजुलानी है। ओके, रॉ के पर फतहा आना चाहिए, रजुलानी इस आने की साउंड आ रही तो इट इज रफा में है। रियालैनी, दो रियाल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अरबिक में कभी भी आपको बोलना है एक रियाल दो रियाल तो वाहिद रियाल का इस्तेमाल नहीं बोलते, रियालुन, दो रियाल के वास्ते रियालानी या रियालैनी इस्तेमाल करते। कोई भी करेंसी हो, चाहे वो दिरहम भी हो, तो हम उसको वाहिद दिरहम ऐसा नहीं इस्तेमाल करते, दिरहम। और अगर आपको दो दिरहम बोलना है तो दिरहमानी बोलेंगे या दिरहमैनी बोलेंगे आप, इस तरह से। डॉलर को भी या फिर कोई भी करेंसी हो उसको अरबिक में इस तरह से इस्तेमाल होता। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, याद रहे तो ठीक है, नहीं समझ आई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये नंबर्स के चैप्टर में आता है इंशाल्लाह आगे। ओके, चलिए यहाँ पर भी आपको जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करनी थी। खालिदैन, अब ये क्या है, मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। खालिदुन, इसकी जमा, ये खालिदानी डुअल है ना, तो इसका सिंगुलर निकल है ना, खालिदुन। खालिदुन क्या होता, मुज़क्कर होता ना, तो मुज़क्कर है। हाफिज़ानी, हाफिज़ुन इसका सिंगुलर है तो मुज़क्कर होता कि मुन्नस होता, मुज़क्कर होता। रसूलुन, रसूलैनी है यहाँ पर, तो इसका सिंगुलर क्या है, रसूलुन। कभी भी आपको ट्वेल्व में और प्लूरल में कंफ्यूजन हो रहा तो आप उसका सिंगुलर निकालिए, उसका सिंगुलर निकाल के तब देखिए कि वो मुअन्नस है या नहीं है। ओके, तो बैतैनी, बैतैनी का सिंगुलर क्या हो रहा है, बैतुन, बैतुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर है। ओके, फिर इसी तरह से बिनतानी, बिनतानी है तो बिनतुन उसका सिंगुलर फॉर्म हुआ, और बिनतुन क्या कंसिडर किया जाता है, बिनतुन तो हकीकी मुअन्नस है, तो ये हुआ हमारा मुअन्नस। ओके, अब मस्जिदानी, तो ये मस्जिदानी क्या है, इसका सिंगुलर क्या है, मस्जिद, मस्जिद। ओके, तो ये हो गया हमारा मुज़क्कर। इसमें ध्यान रखना चीज आप लोगों को क्या बात है, ब्रोकन प्लूरल में कंफ्यूज नहीं हो जाना। ब्रोकन प्लूरल्स आर कंसीडर्ड एज मोनस, दे आर नॉट मोनस हकीकी, मतलब यानी कि लोग ओरिजिनली मोनसों में कैटेगरीज में नहीं आते। ठीक है, ऐसा भी कंफ्यूज हो सकते बोल के वो भी पॉइंट में मेंशन कर दीजिए। ओके, क़िबलतैनी, दो क़िबले, तो क़िबलुन क्या हुआ, ओरिजिनल सिंगल वर्ड हुआ वाहिद में, तो क्या वो मुज़क्कर है मुन्नस है, मुज़क्कर है। ओके, ज़ौजतैनी, ज़ौजतुन इसका हो गया आपका जो है सिंगुलर फॉर्म, तो ज़ौजतुन ता मरबूता आ रही, मतलब ये मुअन्नस है, तो ज़ौजतैनी मुअन्नस है। ओके, रजुलानी, रजुलानी, रजुलुन उसकी सिंगल, वाहिद जमा है, वाहिद है, तो वाहिद रजुलुन जब हुआ तो वो मुज़क्कर है। ओके, रियालैनी, रियालुन भी मुज़क्कर है।
ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट बिट में आपको मारिफा और नकीरा पहचानना था। ओके, वालिदानी मारिफा है या नकीरा है? ओके, नकीरा है क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले उसमें अल-हाफिज़ानी, अल-हाफिज़ानी जो है अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये मारिफा हुआ। रसूलैनी अलिफ लाम नहीं है लगा हुआ तो ये नकीरा हुआ। अल बैतैनी अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये मारिफा हुआ। बिनतानी ये क्या हुआ? नकीरा हुआ। अल मस्जिदानी अलिफ लाम है मारिफा हुआ। अल क़िबलतैनी अलिफ लाम है मारिफा हुआ। ज़ौजतैनी ये नकीरा हुआ। कसरतानी ओके, दो ज़ेर, कसरतानी, कसरा जो बोलते हैं ना उससे। तो ये क्या है? मारिफा है या नकीरा है? नकीरा है। अल मग़रिबैनी ये क्या है? अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये मारिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया आपका पेपर का डिस्कशन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके चलिए, आज से जब भी जो है ना आप पेपर को देखिए, टेस्ट देखिए, सुकून सुकून से आहिस्ता आहिस्ता से उसको देख देख के सॉल्व करिए ताकि मिस्टेक्स ना हो इंशाअल्लाह। और आई होप आज के बाद जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट के रहते हैं मुअन्नस और मुज़क्कर के। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आयतें। हमें चालू करना है आई थिंक पेज नंबर 58 से, राइट? क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ठीक है, तो रेडी रहिए गर्ल्स, इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ालू उन सब ने कहा, क़ालू उन सब ने कहा, सुब्हानक, अब यहाँ पर का कौन सा का आ रहा? ये कौन सा प्रोनाउन है? वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अटैच प्रोनाउन मुज़क्कर, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सुब्हानका पाक है आप। अब यहाँ पर अक्का किसको बोल रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को बोल रहे फरिश्ते। सुब्हानका पाक है आप। ओके, पाक है आप। ला इल्म, ला नहीं, इल्म कुछ भी, इल्म कुछ भी इल्म, लना हम सबको, इल्ला मगर, इल्ला मगर, माँ जो कुछ, माँ जो कुछ, अल्लमतना आपने सिखाया हम सबको। ओके, आपने सिखाया हम सबको। ओके, पेज 58। मैं शुरू से बोलती हूँ एक बार। क़ालू उन सब ने कहा, सुब्हानका पाक है आप, ला इल्म नहीं कुछ भी इल्म, लना हम सबको, इल्ला मगर, मा जो कुछ, अल्लमतना आपने सिखाया हम सबको, इन्नका बेशक आप, अंत आप। अब ये इन्न का कौन सा फॉर्म ऑफ तमीर आ रहा है यहाँ पर? इन्न का वेरी गुड, अटैच्ड आप। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद फिर से आया देखिए अंत। अब ये कौन सा फॉर्म ऑफ दमीर है? अंत डिटैच्ड, वेरी गुड, डिटैच्ड है ये। ओके, आप कैसा पहचाने कि आपका अटैच्ड है? क्योंकि वो इन्ना से अटैच्ड है। बेशक, बेशक आप, इन्ना हो बेशक वो, इन्ना हुमा बेशक वो सब, वो दो, इन्ना हम बेशक वो सब से, इन्ना
इन्नका बेशक आप, इन्नकुमा बेशक आप तुम दो। ओके, इस तरह से। तो इन्नका का है, का है। अंत क्योंकि अलग है तो इससे आप पहचानेंगे वो डिटैच्ड है बोल के। अंत मुदक्कर। वेरी गुड। अंत आप, देखिए इस तरह ये है, ये लैंग्वेज ऑफ कुरान है ना। इन का बेशक आप, फिर आप बोल रहे हैं। आप समझ में आ रहा, 2 बार आप आपका इस्तेमाल हो रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह से जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करने का स्टाइल है। क्या है, या अय्युहल्लज़ीना कफरू। ओके, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो सब, अल्लज़ीना वो सब, अल्लज़ीना कफरू, कफरू का मतलब क्या है, वो सब जिन्होंने कुफ्र किया। ओके, फिर वो सब जिन्होंने कुफ्र किया, इस तरह से। ये ऐसा क्यों आता, क्योंकि एम्फसाइज करने के लिए बात को। ओके, तो इन्नका आप, बेशक आप, अंत आप, अल अलीम खूब इल्म वाले, खूब इल्म वाले, अल हकीम खूब हिकमत वाले हैं। ओके, खूब इल्म वाले, खूब हिकमत वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखिए सुब्हानका में जो है ना का इस्तेमाल हुआ, अटैच्ड। ओके, और उसके बाद इन्नका में जो है ना अटैच हुआ, अपना अटैच्ड प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ। अंता में यू का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। ओके, और कोई आपको दिख रहा, और कोई आपको दिख रहा जो हो यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल किसी और लफ्ज में या आयत में? ना, वेरी गुड। लना, वेरी गुड, लना भी है आपका। ओके, और अल्लमतना का ये ना भी अटैच्ड प्रोनाउन है। ये 2 है जो मैं हाईलाइट करी, देखिए, सर्कल करी। ओके, तो उन सब ने कहा, पाक है आप, नहीं कुछ भी इल्म हम सबको, मगर जो कुछ आपने सिखाया हम सबको। बेशक आप खूब इल्म वाले, खूब है हिकमत वाले हैं। ओके, तो ये आयत इस तरह से थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम देखे प्रोनाउंस में। नेक्स्ट आयत है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत। या आदम, ए आदम, ए आदम, उस्कुन, लिफ के ऊपर, ये जो अलिफ है ना उसके ऊपर दम्मा लिखिए, हम तो वसल है वो, उसके ऊपर दम्मा लिखिए, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ ऑर्डर है। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर के किस तरह से होता है। उस्कुन तुम रहो, तुम रहो, उस्कुन तुम रहो, अंता तुम, अंता तुम, व ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी, व और है वहां पर, ज़ौजुका तुम्हारी बीवी, अल जन्नता जन्नत में। ओके, तो यहाँ पर 2 देखे हम। अंता क्या है, अंता कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है? अंता डिटैच, वेरी गुड। ज़ौजुका, ज़ौजुका अटैच्ड, वेरी गुड, का अटैच्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। या आदमो, ए आदम, उस्कुन तुम रहो, अंता तुम, व और, ज़ौजुका तुम्हारी बीवी, अल जन्नता जन्नत में। ओके, नेक्स्ट आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा में। अ, आयत, इय्याका, इय्याका हम देखे थे ना, इय्याका सिर्फ आपकी, का अटैच प्रोनाउन है। वेरी गुड रेना, वेरी गुड। नअबुदु हम सब इबादत करते हैं, नअबुदु हम सब इबादत करते हैं, व और, इय्याका सिर्फ आप ही से, सिर्फ आप ही से, नस्तईन हम सब मदद चाहते हैं। ओके, इय्याका सिर्फ आपकी, नअबुदु हम सब इबादत करते हैं, व और, इय्याका सिर्फ आप ही से, नस्तईन हम सब मदद चाहते हैं।
ओके, हम सब मदद चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखिए, इया का और व इया का में कौन से फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं? दोनों भी अटैच प्रोनाउन है। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट आयत है अलम नशरह लका सदरक। सदरक, अलम, आ, ये क्या है? क्वेश्चनिंग हमजा है। उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चनिंग हमजा, हर्फुल इस्तिफहामिया अरबिक में बोलते हैं, हमजा बोलते हैं। तो ये जब भी आता मतलब सवाल पूछने के लिए आता। ओके, क्या नहीं, क्या, जो हमजा है उसका मीनिंग है क्या। लम का मतलब है नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं। नशरह का मतलब क्या है? हमने खोला। नशरह, हमने खोला। लका, तुम्हारे लिए। सदरा का, तुम्हारा सीना। ओके, तुम्हारे लिए, तुम्हारा सीना। तो यहाँ पर दो प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए, वो कौन से है? लका, लका क्या है? लका फॉर यू, अटैच प्रोनाउन। सदरा का, सदरा का तुम्हारा सीना, योर चेस्ट। तो दोनों भी अटैच प्रोनाउन है। अल्लाहुम्मा बारिक। वेरी गुड। तो अलम, क्या नहीं, नशरा हमने खोला तुम्हारे लिए, तुम्हारा सीना। लका तुम्हारे लिए, सदर का तुम्हारा सीना। ओके, नेक्स्ट आयत है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी व इस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। व, और, इद, जब। कुरान में इद भी आता और इदा भी आता। इद आके रुक गया तो मतलब, इद जब आया तो आयत को पास्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। इदा जब आया, इदा कैसे याद रखना, इदा आगे बढ़ा, अलिफ आ रहा, इदा की आवाज अपन आगे नहीं कर रहे, तो मतलब आयत को प्रेजेंट या फ्यूचर में लेते हैं। ओके, ये बात याद रखिए। इद और जब। औलत, औलतिल मलाइकतु, तो फरिश्तों ने कहा। औलतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा। वइज़, और जब। औलतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा। या मरियम, ए मरियम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। इस्तफा की, अब यहाँ पर ये अलिफ के नीचे कसरा लगाइए। ओके, इस्तफा की का मतलब क्या है? चुन लिया है तुझे। तो चूज मतलब चूज, चुन लिया है तुझे। वतहहरा की, और पाक किया तुझे। व इस्तफा की, और चुन लिया है तुझे। अला निसाइल आलमीन, मतलब अला पर, जो हम बोलते हैं ना पर, उर्दू में पर। निसाइल, निसा मतलब क्या है? औरतों। आलमीना, सारे आलम के, तो सारे जहानों के औरतों पर। अला का मतलब है पर, निसाई प्लूरल है, किसकी प्लूरल है? औरतों की प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल है। निसाइल आलमीना, अब ये क्या है? ये आलमीना सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। वेल है बोल रहे, थोड़े लोग प्लूरल है बोल रहे। आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना, ये क्या है? ऊना, ईना, ईना है, तो ये प्लूरल है। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये आयत फिर से रिपीट करती हूँ। वो, और, इद जब, क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा। या मरियम, ए मरियम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। इस्तफा की, चुन लिया है तुझे। वतहहर की, और पाक किया है तुझे। व इस्तफा की, और चुन लिया है तुझे।
अला निसाइल आलमीन, सारे जहानों की औरतों पर। तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो प्रोनाउन इस्तफा की जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, अटैच प्रोनाउन है। और यहाँ पर किया देखिए फेमिनाइन के वास्ते इस्तेमाल हो रहा की। ओके, वतहर की, और पाक क्या है तुझे, की फिर से आ रहा। ओके, व इस्तफा की फिर से किया रहा, ये भी फेमिनाइन हुआ। ओके, अल्लाह ने साइल अल्लाह ने, ये तीन जो है ना फॉर्म्स यहाँ पर आधे इस्तेमाल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट आयत है या मरियम मुक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। या मरियम, ए मरियम, ए मरियम अलैहिस्सलाम, वो कनोती, यहाँ पर अलिफ के ऊपर दम्मा लगाइए। वो कनोती, तुम फर्मा बरदार हो जाओ, तुम फर्मा बरदार हो जाओ, लिरब्बिकी, तुम्हारे रब के लिए, लिरब्बिकी, तुम्हारे रब के लिए, वस्जुदी, और तुम सजदा करो, व और उस जुदी है वो, अलिफ के ऊपर दम्मा लगाइए, उस जुदी। जहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ अलिफ के ऊपर दम्मा लगाइए, फतह लगाइए, वो सब ऑर्डर से है, ऑर्डर से। तो ये किस तरह से है, या मरियम, ए मरियम अलैहिस्सलाम, वक़नूती, तुम फर्मा बरदार हो जाओ, लिरब्बिकी, तुम्हारे रब के लिए, वस्जुदी, और तुम सजदा करो, व इरकाई, व इरकाई है। ओके, व और इरकाई, तुम रुकू करो, मार राकिईन, मा का मतलब क्या है, विद। ओके, तो मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ, मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें, लिरब्बिकी, ये कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन है। ओके, लिरब्बिकी फेमिनाइन के वास्ते जो इस्तेमाल होता है। फिर इरकाई, ओके, वस्जुदी, ई जो ये इस्तेमाल हो रहा, वो कौन सा है, वो भी अटैच वाला प्रोनाउन है। ये मेरे लिए जो होगा ना, बैती, मेरी, मेरा घर, किताबी, मेरा, मेरी किताब, कलमी, मेरा पेन, इस तरह से। तो वस्जुदी, ओके, तुम सजदा करो, किसके वास्ते, मेरे वास्ते, मैं को सजदा करो मतलब, रकाई, और तुम रुकू करो। ओके, तो मार राकिईन, विद रुकू करने वालों के साथ। तो यहाँ तक हम रखेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो पूछिएगा इंशाअल्लाह। और ये है इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने का कि होमवर्क जो है ज़रूर सबमिट करिएगा, क्योंकि 2 वीक्स तक जो है ना हम देखेंगे। और अगर आई होप कि आप सबने रजिस्टर कर लिया होगा। और जो कौन सा ट्रांसलेशन चाहिए फिर से अगेन, लास्ट की आयत वाला। ओके, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, वइज़, और जब, क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा, या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, इस्तफा की, चुन लिया है तुझे, व तहहरा की, और पाक किया है तुझे, व इस्तफा की, और चुन लिया है तुझे, अला निसाइल आलमीन, सारे जहानों की औरतों पर। ओके, सारे जहानों की औरतों पर। या मरियम, ए मरियम, उक़नुती, तुम फरमा बरदार हो जाओ, लिरब्बिकी, तुम्हारे रब के लिए, वस्जुदी, और तुम सजदा करो, वरकाई, और तुम रुकू करो,
मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। ए मरियम, तुम फरमान बरदार हो जाओ तुम्हारे रब के लिए, और तुम सजदा करो, और तुम रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। चलें, तो ये चीज जो है कंसिडर करना है इंशाअल्लाह। और आपको किस तरह से होमवर्क जो है ना भेजना है, वो गूगल ड्राइव से आसानी से वो सेंड हो जाता होमवर्क, वो ज़रूर सेंड करिए। और अपना रेगुलरली जो है ना क्लासरूम को ज्वाइन करिए, चैट बॉक्स में लिंक दिया गया है, देखिए। और होमवर्क आपको गूगल ड्राइव से अपलोड करना है, वो किस तरह से है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, देखिए। प्लीज इस तरह से होमवर्क सही से अपलोड करिए, और जैसे एक दो जनों का नहीं हो रहा बल्कि नहीं है ना, सबका हो रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको ध्यान से सुनिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं आपको होमवर्क अपलोड करने का न्यू प्रोसीजर जो है वो बता रही हूँ। सबसे पहले फ़ोन में जाइए, अपना गूगल जो फ़ोल्डर है उसे ओपन। सबसे पहले आप लोग को आपके पास गूगल क्लासरूम होना चाहिए, ओके। आपके पास अगर ऐप नहीं है ये तो इंस्टॉल कर लीजिए, हर एक फ़ोन में रहता कैसा भी गूगल क्लासरूम रहता, और ड्राइव, गूगल ड्राइव रहता, ओके। जो मेल आईडी से, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखिए, आप लोग के नेम जो क्लासरूम में है वो सेम होना चाहिए, जो आप क्लासरूम से क्लासरूम में एंटर हो रहे वो सेम होना चाहिए, और जो आप गूगल फॉर्म में से नेम सेम कर भेज रहे वो भी सही पूरा कंप्लीट लिखिए, ऐसे नहीं लिखिए खाली आयशा सुल्ताना है तो खाली आयशा नहीं लिख दीजिए। बहुत सारे आयशा होते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि आप लिखे आप कोई और है। अपना नाम जो आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, आपको इसके बाद अटेंडेंस शीट भी भेज दी जाएगी, उसके हिसाब से आप अटेंडेंस फिल करिए। ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ओके। क्लास अटेंड करना, होमवर्क करना, और गूगल फॉर्म जो है सबमिट करना, ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपके वास्ते। और 2 हफ्तों के अगर रेड मार्क्स रहे तो रिमूवल फ्रॉम द ग्रुप रहेगा आपका तीसरा हफ्ता। एंड दिस इज ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा नहीं है कि जो है कर दिए और ऐसे भेज दिए, बल्कि वैसा नहीं। होमवर्क के लिए प्रॉपर बुक मेंटेन करिए, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला की खातिर है, और अल्लाह सुब्हान तआला को बताने के लिए कर रहे बोले। जैसे गिफ्ट हम देते तो किस तरह से अच्छे से पैक करके देते, तो इस तरह से खूबसूरती के साथ करिए, टुकड़े टुकड़े पेपर्स पे नहीं करना होमवर्क, एक जगह एक बुक मेंटेन करना, और उसके हिसाब से इमेज जो है देते वक्त सही लेना, और उसको ऐसा नहीं होना कि लाइट फिक्की एकदम इमेज है, पेंसिल्स लिखा गया और सिर्फ फॉर्मेलिटी के वास्ते लिखा गया, उस तरह से नहीं, ओके। क्या होमवर्क है मैं इंशाल्लाह बोलती हूँ। अभी पहले आपके पास गूगल प्ले स्टोर में से अगर गूगल क्लासरूम नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लेना, ड्राइव नहीं है तो ड्राइव को इंस्टॉल कर लेना, और पीडीएफ को बना के भेजना। पीडीएफ बना के भेजिए तो आसानी होती है, किस तरह से है करिए देखिएगा। और ड्राइव फ़ोल्डर जो है उसे ओपन करिए। यूजुअली ये सब फ़ोन में होता है, तो फ़िक्र ना करें। फिर यहाँ पर जो कैमरा आइकन है उसे प्रेस करिए, और जो आपका होमवर्क है उसे आप तो सबसे पहला आपको जो है ना, आपका गूगल ड्राइव का खोलना है, खोल के उसमें स्कैन करना है, ओके। स्कैन कर लीजिए, या फिर पिक्चर लेना है, जो भी आपको जो कंफर्टेबल है। नॉर्मली ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है तो आपको मसला नहीं होगा। और आपका दूसरा या तीसरा पेज अगर आपको स्कैन करना है तो आप प्लस प्रेस करिए, और पेज को आप, आपका होमवर्क है यहाँ पर उसे देखिए सबसे आप पहले जो कैमरा आइकन है उसे प्रेस, ड्राइव फोल्डर जो है उसे ओपन करिए। यूजुअली ये वाला ड्राइव वाला फोल्डर है, इसको ओपन करें। ये ओपन सब फ़ोन करके में होता है, तो स्कैन का ऑप्शन फिक्र आता ना है वहाँ करें। पे, फिर ओके। यहाँ पर जो इमेज देने वाला कैमरा आता ना, आइकन उस है पे उसे प्रेस करिए, प्रेस करना है। और जो आपका होमवर्क है उसे आप स्कैन कर लीजिए, या फिर पिक्चर लेना है, जो भी आपको जो कंफर्टेबल है। नॉर्मली ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है तो आपको मसला नहीं होगा। और आपका दूसरा या तीसरा पेज अगर आपको स्कैन करना है तो आप प्लस प्रेस करिए, और पेज को आप स्कैन कर लीजिए फिर से, या फिर पिक्चर ले लीजिए उसकी। और जब आपके हो अगर 2-3 पेजेस है तो प्लस पे प्रेस करना, और वो हो जाता है, सेंड हो जाता है इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कंफर्टेबल है, नॉर्मली ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है तो आपको मसला नहीं होगा।
اور آپ کا دوسرا یا تیسرا پیج اگر آپ کو اسکین کرنا ہے تو آپ پریس کریے اور پیج کو آپ اسکین کر لیجیے پھر سے، یا پھر پکچر لے لیجیے اس کی. اور جب آپ کے ہو جائے جتنے بھی پیجز سے اسکین کرنے کے یا پکچر لینے کے، پھر اسے آپ ہو کے بعد آپ ڈن کریے پریس. اور جب وہ ہو جائے تو ابھی یہاں پر میں ری نیم کر رہی ہوں تاکہ ایزیلی فائل مل جائے، مسئلہ نہ ہو ڈھونڈنے میں. تو آج کی ڈیٹ فار ایگزامپل 27 ہے، تو میں 27 فیب کے ڈیٹ سے اسے سیو کر رہی ہوں. سیو ایک بار ریفریش کر لے، دیکھ لے تاکہ وہ ٹھیک سے سیو ہو گیا یا نہیں. ہو گیا. ابھی پھر آپ واپس جائیے اپنے گوگل کلاس روم میں، اور جو اسائنمنٹ ہے مدینہ کا وہ اس میں جائیے. اور اوکے، کیونکہ میں دوسری بھی کلاس لیتی تو یہ ویڈیو مدینہ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آپ لوگ کو اس کو کس طرح سے کرنا ہے، آپ لوگ کا جو لرننگ عربک لینگویج آف دا قرآن تعلیم اللغت العربیہ کا گروپ ہے اس میں سینڈ کرنا ہے آپ کو. اوکے، اور آپ سینڈ کرتے کہ یہ اسائنمنٹ دکھتا نا جو اب آج کی ڈیٹ کا حساب سے، میں جیسے یہاں پر نیو اسائنمنٹ ہوم ورک فار ڈیٹ جو ہے نا اس حساب سے میں ڈیٹ دیتی ہوں، تو اس پہ کلک کر کے پھر آپ اٹیچ کریے فائل. اوکے، اگر ایسا جیسا یہ جو نا پورے کلاس روم میں عائشہ شازی بول کے جو سینڈ کرے، یہ پورے کلاس روم کو دکھتا، سب کو دکھتا یہ. اوکے، ایوری ون جو بھی کلاس روم میں ہے سب کو دکھتا، اور یہ ایسا نہیں چاہیے، اور یہ کریکشن نہیں ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ بھیجے. اوکے، اس طرح سے اگر آپ بھیجے تو میرے کو کریکشن کرنے نہیں آتا. آپ کو وہ اسائنمنٹ کے اندر جا کے پھر جو ہے نا سینڈ کرنا. کلک کریے اور ایڈ ورک جیسا ہمیشہ کرتے ہیں نا ویسے ہی، انسٹیڈ آف کیمرا اور اسکینر جو ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں، اب کی بار ہم ایڈ فرام ڈرائیو میں جائیں گے. تو یہاں پر نیچے پریس کرنے کے بعد ایڈ فرام ڈرائیو کا جو ہے نا آپشن آتا، کلک کر دیا اور یہاں پہ مائی ڈرائیو سلیکٹ کریے، اور پھر آپ کا جو ہوم ورک ہے اسے آپ سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیجیے. اور اپلوڈ ہوتے وقت بہت سارے لوگ خالی اتنا چھو رہتا اور سمجھتے ہو کیا، بلکہ یہ پورا کمپلیٹلی فل ہونا، پورا کمپلیٹلی اپلوڈ ہونا، اور وہ لوگ سوچتے کہ ہوم ورک ہمارا چلے گیا بلکہ. اور جو تاریخ کا آپ کا ہوم ورک ہے اس کو سینڈ کریے. بہت سارے اسٹوڈینٹس ایسے رہتے کہ پچھلا ہوم ورک ہے اسمارٹ ٹیسٹ دکھانے کے لیے وہاں پر کی پتہ نہیں مجھے کیا، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ مطلب کیا سمجھتے کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں یا کرتے نہیں. تو پہلے کا ہوم ورک جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اور بھیج دیے، اور پورا کمپلیٹ پروسیجر میں ایکسپلین کری. لیکن ہم کو تو اللہ سبحانہ کی خاطر کرنا ہے نا، تو یہ دماغ میں ہمارے رہنا چاہیے کہ جب ہم کر رہے تو آسانیاں ہوں سب کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ آپ جو بھی محنتیں کر رہے ہیں اس کا آپ کو خوب اجر دے اور آپ کو بہت ہمیشہ جو ہے نا خوش رکھے. اس طرح سے یہ پورا کمپلیٹلی اپلوڈ ہوئے بعد جب جو ہے نا یہاں پر نیچے آتا ہینڈ ان کر کے، جب یہ پورا اپلوڈ ہو جاتا وہ بھی پریس کرنا ضروری ہے. اگر وہ پریس نہیں کرے تو میرے کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ہوم ورک بھیجے گی. ایک بار چیک کر لے تاکہ وہ ٹھیک سے اپلوڈ ہوا یا نہیں. فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج الحمدللہ ہو گیا. پھر ابھی آپ ہینڈ ان کر دیجیے. یہاں پر بعض کے پاس ہینڈ ان لکھا ہوا تھا، بعض کے پاس ٹرن ان لکھا ہوا ہوتا، جس کا جو ہے جیسا آ رہا اس حساب سے ٹرن ان کریے اور ہوم ورک بھیجیے. اور ہوم ورک میں کوئی زیادہ لکھنے کے لیے نہیں دیتی ہوں، آپ لوگ کو تھوڑے 2-3 آیتیں اور جو کانسیپٹ ہم سمجھے اس حساب سے. اینڈ اٹ از فار یور سیک اونلی. ہوم ورک دینا، کریکشن کرنا بھی میری کچھ ریسپانسبلٹی ہے، وہ کریکشن کرنے کی، دیکھنے کی، سب کے. تو زیادہ برڈن تو میرے کو ہوتا، لیکن آپ لوگ کو آنا اسی لیے ہم ہوم ورک بار بول رہے ہیں. اور یہ چیز گارنٹیڈ بات ہے کہ وداؤٹ ڈوئنگ ہوم ورک آپ کو جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آتا عربی گرامر میں، صرف خالی سن لینا از ناٹ دا سلیوشن. تو یہ میں جو ہے نا جو ویڈیو ہے اس کو سینڈ کرتی ہوں. اس طرح سے اسٹیپ وائز جا کے پلیز پی ڈی ایف اپنے سبمٹ کریے. فوٹوز ایسی نہیں بھیج دیجیے گا، کیونکہ فوٹوز کیا ہوتے ہیں ٹائم لیتے بہت زیادہ سیو ہونے کے. ایک امیج میں کریکشن کر کے پھر 10 منٹ میں رکنا پڑتا ہے اس کو سیو کرنے کے واسطے، پھر دوسرا امیج میں کر سکتے ہو. تو پی ڈی ایف از دا بیسٹ آپشن انشاءاللہ. اور آپ لوگ کا ہوم ورک جو ہے نا اس ویک کے لیے کیا رہیں گا، جو میں یہ سمجھائی ہوں مونس کی کیٹیگریز، اس کو جو ہے نا آپ اپنے اون الفاظ میں جس طرح سے لکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لکھیے. اور یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ کریے گا. یہ ہے نا الم نشرح لک صدرک وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم اقنتی، یہ والے 1 2
3 یہ 3 آیتیں بس. اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا ریگارڈنگ پروناؤنس وہ لکھیے جیسا آپ لاسٹ ٹائم کرے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہم پی پی ٹی میں دیکھے وہ پی پی ٹی میں انشاءاللہ ڈال دیتی ہوں گروپ میں فار یور ایزی ریفرنس کہ آپ کو مونس کے ڈفرینٹ یعنی کہ اس کو جو ہم سمجھے موٹے موٹے طور پر یہ جو ہے آپ بھیج دیجیے. اور پلیز ہوم ورک کو نیٹلی کریے اور اچھے سے پکچر لیجیے کیونکہ ہمارے سامنے پیپر نہیں ہے نا کریکشن کرنے کے لیے. جس طرح سے بھی ہوا ہے ہمارے پاس امیج ہے اور اس کو ہوم ورک کرنا کریکشن کرنا مشکل کی بات ہوتی ہے کیونکہ کریکشن کرنے کے بعد سیو بھی کرنا سب کے رہتے. بعض لوگ صحیح سے اس کو سینڈ کرتے بعض لوگ نہیں کرتے. تو بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارے واسطے یہ سفر آسان کرے انشاءاللہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا زدنا علما. یہ پڑھتے رہیے بار بار اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اس کا بہت بہت زیادہ اجر دے. آپ سب کی میزان میں یہ سیکھنا سکھانا اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر بہت وزنی ہو جائے اور جو ہے آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین یا رب العالمین. ابھی چلیے انشاءاللہ کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے وہ ہمیشہ جیسا چیک لسٹ آئی تھی اسی طرح سے سیم چیک لسٹ جو ہے نا آپ کی دی جائے گی ایوری ویک بفور دا کلاس. ہاں اور اگر آپ کے ریڈ مارکنگس رہیں گے تو 2 ویک سے